Namaste. My name is Ayush Mudgal. I am from Faculty of Law and Governance, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. My subject is company law. So, in our first lecture, we discuss the session 1, which is introduction. So, in this session, we will discuss about the syllabus according to semester 2nd of BA LLB, BBA LLB and BCom LLB. In this syllabus part, the syllabus is divided into 3 parts, 3 units. So we will discuss unit 1 in brief, and we will have a idea regarding what we will gonna discuss in unit 1. The first topic of unit 1 is formation, registration and incorporation of a company. Then the second part is nature and kinds of company, how company is formulated and how registration process of a company is being done, and how it is incorporated. After incorporation, what is the nature of a company and how many kinds of company are there under the Companies Act. Then the third topic is promoters, what are their promoters position, their duties and liabilities. Then mode and consequences of incorporation, how a company can be incorporated, and whether there are only one mode or several modes by which a company can be incorporated. Then uses and abuses of corporate form and the doctrine of lifting of corporate veil. Next topic is memorandum of association, whether it can be altered, what is the effect after the alteration of memorandum of association. Then doctrine of ultra vires. Other than that, next topic is articles of association, whether they have binding nature or not and how it can be altered. Next topic is the relationship between MOA and AOA, which is memorandum of association and article of association. And the last topic of unit 1 is doctrine of constructive notice and doctrine of indoor management. So unit 1 comprise all these topics which I have discussed. So before we start the unit 1, let's have a common idea related to the company law. In India, the legislation which deals with the company law is the Companies Act 2013. The latest is Companies Act 2013. But how the legislation came into existence, what is the historical background of that legislation, we will discuss it. As we know, after the before advent of Britishers, I will speak in Hindi as well, because most of the student don't have English background, so I'll speak in Hindi, and if there is any difficult word, I discuss in both the languages. जब तक ब्रिटिशर्स का एडवेंट नहीं हुआ था इंडिया में, कंपनीज एक्ट कंपनी का कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं था, यह कहना सही नहीं होगा, क्योंकि 4th BC में, 4th सेंचुरी में कौटिल्य का अर्थशास्त्र में जो भी बिजनेस करने के आइडियाज़ थे, सभी पहले ही 4th सेंचुरी से चले आ रहे हैं। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि कंपनीज लॉ या कंपनी रिलेटेड लॉ और business models, how a business can be done, is discovered by Britishers only. Before Britishers, there was no regulatory legislation, any legislation which can regulate the business activities
in form of any corporation of or any companies. So after Britishers came up with the East India Company, as we know. ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ब्रिटिशर्स इंडिया में आए। उसके बाद जब कंपनी नाम की एक चीज़ आई, उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की आवश्यकता पड़ी। फिर उसको एक लेजिस्लेचर ने एक प्रॉपर फॉर्मेट में रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेजिस्लेट किया। उसके ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद 1844 में पहली बार जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट नाम का एक लेजिस्लेशन आया। फिर इसका धीरे धीरे जिस प्रकार विकास हुआ कंपनीज एक्ट का, पहली बार कंपनीज एक्ट नाम का लेजिस्लेशन आया, द कंपनीज एक्ट 1850। देन ये अमेंड होता गया, इसके नाम चेंज होते गए धीरे धीरे धीरे, जिस प्रकार द जॉइंट स्टॉक कंपनीज 1857, द कंपनीज एक्ट 1866, देन द इंडियन कंपनीज एक्ट 1882, कंपनीज एक्ट 1913 में जिस प्रकार अमेंड हुआ कंपनीज एक्ट, देन द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1951, then the after the companies act 1913 there was a committee established, एक कमेटी बनाई गई 1913 में। H.C. भाभा नाम के व्यक्ति उस कंपनी के चेयरपर्सन थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसने रिकमेंड किया there must be a new companies act called the companies act 1956। आज़ादी के बाद पहली बार 1913 तक ब्रिटिशर्स का मॉडल इंडियन कंपनीज को गवर्न करता आया था। उसके बाद 1951 में पहली बार कंपनीज एक्ट अमेंड हुआ और H.C. भाभा ने द कंपनीज एक्ट 1956 को रिकमेंड किया और एक लेजिस्लेशन बना द कंपनीज एक्ट 1956। उसी से कंपनीज रेगुलेट होने लगी इंडिपेंडेंट इंडिया में। इसमें भी काफ़ी अमेंडमेंट हुए, जैसे 1960, 1963, 65, 69 एंड इस प्रकार अमेंडमेंट होते होते द लेटेस्ट कंपनीज एक्ट इज कंपनीज एक्ट 2013। आफ्टर as H.C. Bhabha committee recommend the Companies Act 1956 like this, J.J. Irani report and the Company Law 2004 was the basis of Companies Act 2013। So इस प्रकार Companies Act आगे उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देखा कि किस प्रकार कंपनीज एक्ट 2013 आया, उससे पहले क्या क्या हुआ, उससे पहले क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए। उसके लिए मैं एक आपको प्रॉपर नोट्स मेल कर दूंगा या आपके ई नोट्स सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब हम बेसिक बातें करते हैं कंपनीज एक्ट से रिलेटेड। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम जब कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंपनी। कंपनी शब्द एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। दो लैटिन वर्ड्स थे, फर्स्ट इज कॉम COM एंड सेकंड इज पेनिस PANIS। कॉम का मीन्स होता है विद और टुगेदर एंड द पेनिस मीन्स ब्रेड या मील। अगर हम हिंदी में कहें तो कंपनी का मतलब ये हुआ है कि एक साथ बैठकर भोजन करने वाले व्यक्तियों को, जो एक साथ दे आर हैविंग ब्रेड और हैविंग मील, द ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर, जो भी साथ बैठकर एक साथ मील करते थे, भोजन करते थे, उस ग्रुप को, उस समूह को कंपनी कहा जाता था। धीरे धीरे इसकी परिभाषा चेंज होती गई। फिर ग्रुप में बिजनेस की बातें होने लगी तो उसको कंपनी शब्द को एक बिजनेस चीज़ से रिलेट करने लगे। उसके बाद कंपनी शब्द का और इंटरप्रिटेशन किया गया। तो
एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीपल, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन्स जब वो मिलते थे ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड जब उनकी चर्चा होती थी, तो उस समूह को कंपनी कहते थे। इस प्रकार द कंपनी शब्द का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देखा कि इसका बेसिक मीनिंग क्या है, किस किस प्रकार इसको बाद में परिभाषित किया गया। फिर एक शब्द और आप कंपनीज एक्ट में, पूरे कंपनीज एक्ट में आएगा कॉरपोरेशन। द वर्ड कॉरपोरेशन इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉर्पस। कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी। कॉरपोरेशन का अगर लेमन लैंग्वेज में, अगर सामान्य भाषा में बात करें तो कॉरपोरेशन का मतलब होता है कि एक लीगल पर्सन को क्रिएट करना। कॉरपोरेशन का मीनिंग होता है कि एक लीगल पर्सन को क्रिएट करना अदर देन द नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस के अलावा अगर किसी भी तरीके से एक लीगल पर्सन को क्रिएट किया जा रहा है तो उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉरपोरेशन। इसी प्रकार हम जब कंपनी और कॉरपोरेशन की बात करेंगे तो कंपनी हमेशा एक इनकॉर्पोरेट, कंपनी की जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें शब्द आएगा इनकॉर्पोरेशन। तो कॉरपोरेशन का हम मतलब समझ गए कि कॉरपोरेशन मतलब ये होता है कि कभी भी किसी भी एक लीगल पर्सन, लीगल एंटिटी को जब हम एक क्रिएट करते हैं अदर देन नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस के अलावा जब भी कोई लीगल पर्सन क्रिएट किया गया है उसको कॉरपोरेशन बोलते हैं। कॉरपोरेशन या कंपनी दो ही प्रकार से इंडिया में बन सकती है, क्रिएट की जा सकती है। पहला है स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या फिर अकॉर्डिंग टू द कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में कंपनी बनाने के लिए कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, अगर उन कंडीशंस को फुलफिल किया, सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई तो अकॉर्डिंग टू द कंपनी लॉ एक कंपनी या कॉरपोरेशन क्रिएट हो जाता है, एक लीगल पर्सन क्रिएट हो जाता है। पहली प्रोसेस तो ये है। सेकंड प्रोसेस है स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट कोई स्पेशल एक्ट, कोई स्पेशल लेजिस्लेशन के थ्रू किसी भी कॉरपोरेशन या कंपनी को बना रही है तो दो प्रोसेसेस हो गई। एक तो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग आप कंपनी या कॉरपोरेशन बना सकते हैं, और एक पार्लियामेंट स्पेशल एक्ट या फिर स्पेशल लेजिस्लेशन के थ्रू कोई भी कंपनी बना सकती है। जिस एग्जाम्पल लेते हैं हम, अगर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये LIC एक्ट के थ्रू बना है, स्पेशल एक्ट के थ्रू बना है। SBI एक्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, आपने नाम सुना होगा। उस एक्ट ने क्रिएट किया SBI नाम की एक लीगल एंटिटी, लीगल पर्सन को। तो ये स्पेशल एक्ट हो गए। RBI एक्ट 1935 आपने सुना होगा। RBI, उस एक्ट ने जन्म दिया RBI नाम की एक लीगल एंटिटी को। ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, इसीलिए इसको हम कॉरपोरेशन कहेंगे। एक बॉडी क्रिएट हुई, एक कॉर्पस क्रिएट हुआ व्यक्तियों का, जो कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी कहलाई। तो स्पेशल एक्ट के हमने एग्जांपल दे दिए। उसके अलावा कंपनीज एक्ट के अंडर अगर आपने उन कंडीशंस को फुलफिल किया है, जैसे कि कोई भी कंपनी ले लीजिए आप, टाटा स्टील लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और जितनी भी नॉर्मल कंपनीज हम देखते हैं वो सभी कंपनीज एक्ट के जितने भी प्रोविजंस हैं कंपनी बनाने से रिलेटेड, उन सभी को फॉलो करने के बाद एक बॉडी बनी, एक कॉर्पस बना, उसको कंपनी या कॉरपोरेशन हमने नाम दिया। इसके अलावा आगे हम जब अब कंपनी की प्रॉपर डेफिनेशन अगर 2013 कंपनीज एक्ट 2013 के संदर्भ में देखें तो कंपनी की डेफिनेशन एक लाइन में दे रखी है। ए कंपनी मीन्स एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। सेक्शन 2 सब
सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंडर कंपनी लॉ की कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है। कंपनी का मतलब क्या क्या है कि ऐसी कोई भी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेटेड हुई है इस एक्ट के थ्रू, मींस कंपनीज एक्ट 2013 में कोई भी कंडीशंस दे रखी है उनको फुलफिल किया तो एक कंपनी बन गई, लीगल पर्सन बन गया। या फिर अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 2013 से पहले जो एक्ट था कंपनीज एक्ट 1956, अगर 1956 के एक्ट के जितने भी प्रोविजंस हैं उनको फुलफिल करने के बाद एक कंपनी बनी, तो 2013 का जो नया एक्ट आया है वो उसको मना नहीं कर सकता है कि वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर कंपनीज एक्ट 2013 से पहले अगर कंपनी से रिलेटेड कोई भी एक्ट था और उसके प्रोसेस के थ्रू कोई भी कंपनी बनी है तो वह कंपनी कहलाएगी। और इससे रिलेटेड कंपनी की डेफिनेशन हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आई वुड रिकमेंड कि आप कंपनीज एक्ट 2013 की एक बेयर एक्ट ले लें साथ साथ। इसके अलावा आप एक बार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जैसा कि सेक्शन 10 टू सेक्शन 25 आप एक बार पढ़ लें, जिससे कि आगे कंपनीज एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का काफ़ी इस्तेमाल होगा, तो आप कंफ्यूज ना हो उससे। एक बार रिवीजन करें सेक्शन 10 टू सेक्शन 25 का। इसके अलावा आप एक बार कंपनीज एक्ट 2013 की बेयर एक्ट ले लें और बेसिक उसके डेफिनेशन पार्ट को पढ़ना स्टार्ट करें। देन वी विल डिस्कस इट इन अनदर लेक्चर। थैंक यू।